Hello students. In the previous class we have studied about the stories of some villagers of Palampur. Right? What are their occupations? What are their problems? Okay. So we have studied in the previous class about the story of Dala and Ramkali, the story of Savita and Tejpal Singh, the story of Kareem and the story of Kishore. Okay. So today we will study about the agriculture. Okay. In Palampur and in India also in general, that what are the problems in agriculture, what are the modern farming methods that are adopted, and what are their positive and negative effects. Okay, so we know that the main occupation that the villagers of Palampur follow is agriculture. Okay, majority of population of Palampur is engaged in agriculture activities. Okay, so it is the main occupation, the primary occupation. So we will study about that today. First, see that there is a graph given. It tells us the cultivated area in million hectares according to the years. Okay, or decades. So it is the data of the whole India. Okay, this graph is made or shown according to the data of agricultural data of whole India. So see that in 1950 to 1951, the cultivated area in million hectares is above 120, right? 129 million hectares to be specific. In 1990 to 1991, this cultivated area increases starkly and very steeply to above 150 million hectares. So it means that there must be some major changes in the methods of agriculture, because of which the cultivated area has increased so much, right? So what were the changes? Actually, in 1966 there was a green revolution initiated in India. Okay, the green revolution was what? The green revolution was a movement in which HYV seeds, high yielding variety seeds, fertilizers, pesticides, irrigation facilities, machinery like tractors, etc., is employed in agriculture to increase production of crops like wheat and rice. तो ये जो ग्रीन रिवॉल्यूशन था, ये इंडिया में शुरू किया गया था MS स्वामीनाथन ने. ठीक है, और इसमें क्या क्या हुआ था? HYV सीड्स, हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स, जो कि अच्छे सीड्स हैं, जो कि उसी प्लांट में ज़्यादा प्रोडक्शन देते हैं, ज़्यादा यील्ड देते हैं, है ना, वो वाले सीड्स, ट्रैक्टर्स, दूसरी मशीनरी, हार्वेस्टर्स, पेस्टिसाइड्स, फर्टिलाइज़र्स, ये सब यूज़ किए गए थे, जिससे कि प्रोडक्शन एकदम से बढ़ गया था, जैसा कि आप ग्राफ में भी देख रहे हैं. 1950-51 में 129 मिलियन हेक्टेयर्स हैं, एंड 1990 टू 1991 में 150 मिलियन हेक्टेयर्स से भी ऊपर है. ओके, 154-155 मिलियन हेक्टेयर्स. तो इसका मतलब बहुत ज़्यादा चेंजेस हुए एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ में. उसके बाद आप देख रहे हैं इतने कोई ज़्यादा चेंजेस नहीं हुए, क्योंकि 1966 में क्या हुआ था? ग्रीन रिवॉल्यूशन स्टार्ट हुआ था, जिसकी वजह से प्रोडक्शन जो था, प्रोडक्शन क्रॉप्स का बढ़ा एकदम से. ओके, सो हाउ कैन वी इंक्रीज क्रॉप प्रोडक्शन विद इन द सेम लैंड एरिया? As we know, we cannot stretch the land, and hence it becomes necessary to think over the ways to increase the production of cereals within the same land area
टू मीट द डिमांड्स ऑफ ग्रोइंग पॉपुलेशन। ओके, जैसा कि हम जानते हैं कि हम लैंड एरिया को नहीं बढ़ा सकते, है ना, एकदम से, लेकिन हम क्या कर सकते हैं कि जो क्रॉप्स उगाने के तरीके हैं हम उनको बदल सकते हैं, उनको बढ़ा सकते हैं। ओके, जिससे कि हमारा प्रोडक्शन बढ़े। वो क्या क्या तरीके हैं जिससे हम प्रोडक्शन अपना बढ़ा सकते हैं? बाय इंक्रीजिंग लैंड अंडर इरिगेशन, बाय इंक्रीजिंग लैंड अंडर इरिगेशन। जो हमारा इरिगेशन होता है लैंड में वो अभी सिर्फ 40% है, यानी कि आर्टिफिशियल इरिगेशन से ट्यूबवेल्स और दूसरी जो आर्टिफिशियल इरिगेशन के मेथड्स होते हैं, है ना, उनसे सिर्फ 40% एरिया इरिगेटेड है कल्टिवेटेड लैंड का, यानी कि अबाउट 60% ऑफ कल्टिवेटेड लैंड ऑफ एरिया स्टिल डिपेंड्स ऑन रेन फ्रॉम इरिगेशन पॉइंट ऑफ व्यू। इन दिस लैंड ओनली सिंगल क्रॉप इज ग्रोन एंड द प्रोडक्शन इज ऑल्सो लो। तो 60% जो कल्टिवेटेड लैंड है इंडिया का वो क्या है, रेन पर डिपेंड है ना, बारिश पर डिपेंड है, और वहाँ पर सिंगल क्रॉप ही उगाई जाती है, क्योंकि बारिश पर डिपेंड है तो सिंगल क्रॉप ही उगा पाएंगे। और वो भी जो ये सिंगल क्रॉप उगाई जाती है उसका भी भरोसा नहीं है, वो भी प्रॉपरली उगे नहीं उगे, क्योंकि बारिश आई तो इरिगेशन हो गया क्रॉप का, प्रोडक्शन अच्छा होगा, और जिस साल बारिश नहीं हुई या कम हुई उस साल प्रोडक्शन नहीं होगा क्रॉप का अच्छा। तो इसलिए हमें इरिगेटेड कल्टिवेटेड लैंड बढ़ाने की ज़रूरत है, यानी कि हमें जो लैंड एरिया जो इरिगेटेड है उसका परसेंटेज बढ़ाने की ज़रूरत है ताकि हमारा प्रोडक्शन ज़्यादा हो। सेकंड, बाय इंक्रीजिंग लैंड अंडर इरिगेशन के बाद बाय मल्टीपल क्रॉपिंग। मल्टीपल क्रॉपिंग क्या होता है? एक ही साल में एक से ज़्यादा क्रॉप्स उगाना। ओके, सो हमने देखा था पालमपुर में कि वहाँ के फार्मर्स एक साल में 3 क्रॉप्स उगाते थे, राइट। फार्मर्स ग्रो वीट बार्ली इन दिसंबर टू अप्रैल, ज्वार बाजरा इन जुलाई टू सितंबर एंड पोटैटोज इन अक्टूबर टू दिसंबर। ओके, सो to grow more than one crop on a piece of land during the year is known as multiple cropping. ओके, मल्टीपल क्रॉपिंग समझ में आया आपको क्या है? मल्टीपल क्रॉपिंग है एक ही लैंड पर एक साल में एक से ज़्यादा क्रॉप्स उगाना, ठीक है ना। टू ग्रो मोर देन वन क्रॉप ऑन अ पीस ऑफ लैंड ड्यूरिंग द ईयर इज नोन एज मल्टीपल क्रॉपिंग। और ये कब हो सकता है? जब हमारा लैंड जो है वो वेल इरिगेटेड हो, क्योंकि बारिश पर डिपेंड रहेंगे तो मल्टीपल क्रॉपिंग नहीं कर सकते हम, क्योंकि हमेशा तो बारिश नहीं होती है, ओके ना, तो हमारी फसल बर्बाद हो जाएगी। तो इसलिए इरिगेशन अगर हमारा हो रहा है अच्छे से तो हम मल्टीपल क्रॉपिंग कर सकते हैं, जैसा कि पालमपुर में होता था। HYVs आर हाई यील्डिंग वेराइटीज सीड्स ऑफ डिफरेंट क्रॉप्स। तीसरा जो हमारा प्रोडक्शन बढ़ाने का तरीका है वो बाय यूजिंग HYVs, जो मैंने अभी ग्रीन रिवॉल्यूशन में आपको बताया था। HYVs क्या होते हैं? हाई यील्डिंग वेराइटी सीड्स, ऐसे सीड्स जो कि हाई यील्ड दें, हमें ज़्यादा प्रोडक्शन दें। ओके, these varieties produce greater amount of grain from a single plant in comparison to traditional varieties। ये वो varieties होती हैं सीड्स की जो कि greater amount of grain देती हैं from a single plant in comparison to traditional varieties, यानी कि एक ही प्लांट पर जो ट्रेडिशनल प्लांट है उस पर जितना ग्रेन लगेगा उससे ज़्यादा ग्रेन लगता है ना, वो वाले सीड्स जो होते हैं उन्हें हम बोलते हैं HYVs, हाई यील्डिंग वेराइटीज सीड्स। Hence, farmers can grow more crops from their land by using these HYVs, यानी कि जो फार्मर्स हैं वो HYV यूज़ करके, HYVs हाई यील्डिंग वेराइटी सीड्स यूज़ करके अपना प्रोडक्शन बढ़ा सकते हैं, है ना, उतने ही लैंड पर जितना उनके पास पहले था, क्योंकि हर एक प्लांट पर ग्रेन ज़्यादा होगा तो उनका प्रोडक्शन ओवरऑल ज़्यादा होगा। इसमें लिखा भी है, देखिए, HYVs were introduced in India in the late 1960s and as a result the green revolution occurred in India। जो ग्रीन रिवॉल्यूशन है उसमें एक तरीका क्रॉप प्रोडक्शन बढ़ाने का HYV सीड्स भी थे।
देन आते हैं बाय यूजिंग मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स। चौथा तरीका क्या है क्रॉप प्रोडक्शन बढ़ाने का? बाय यूजिंग मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स। मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स में क्या क्या होंगे? मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स में फर्टिलाइजर्स और इंसेक्टिसाइड्स का यूज़ है ना, मॉडर्न इरिगेशन फैसिलिटीज़ का यूज़। मॉडर्न इरिगेशन फैसिलिटीज़ कौन सी होती हैं? स्प्रिंकलर सिस्टम, ट्यूबवेल, ड्रिप इरिगेशन, ओके, सरफेस इरिगेशन, जो कि कई बार हम पहले जो होता था वो ट्रेडिशनल में करते थे, लेकिन अभी आप मेन मान के चलिए कि जो मॉडर्न इरिगेशन फैसिलिटीज़ हैं वो कौन कौन सी हैं? स्प्रिंकलर सिस्टम एंड ड्रिप इरिगेशन, ओके। दूसरा मॉडर्न फार्मिंग मेथड है फर्टिलाइजर्स एंड इंसेक्टिसाइड्स। तीसरा फार्म मशीन्स, जो कि हार्वेस्टर हो गया, ट्रैक्टर हो गया आपका, है ना, HYV सीड्स, तो आपने पहले ही देखा कि हम यूज़ कर सकते हैं क्रॉप प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए, ठीक है ना। देन आता है फार्मर्स ऑफ पंजाब, हरियाणा एंड वेस्टर्न उत्तर प्रदेश वर द फर्स्ट टू यूज़ मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स इन इंडिया। पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के जो फार्मर्स हैं वो फर्स्ट थे मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स यूज़ करने में, क्योंकि यहीं पर ग्रीन रिवॉल्यूशन की शुरुआत हुई थी। पॉजिटिव इफ़ेक्ट्स ऑफ मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स। अब पॉजिटिव इफ़ेक्ट्स क्या हैं मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स के? पॉजिटिव इफ़ेक्ट्स सिंपल हैं, जैसा कि आपको टेबल में भी दे रखा है ना, कि आपका प्रोडक्शन ऑफ पल्सेस एंड प्रोडक्शन ऑफ वीट, प्रोडक्शन ऑफ पल्सेस और प्रोडक्शन ऑफ वीट बढ़ा है। तो इससे क्या होता है, मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स यूज़ करने से प्रोडक्शन बढ़ता है। ये तो हो गया पॉजिटिव इफ़ेक्ट। अब इसके नेगेटिव इफ़ेक्ट्स क्या क्या हैं? नेगेटिव इफ़ेक्ट्स देखिए, नेगेटिव इफ़ेक्ट्स ऑफ मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स, रिक्वायरमेंट ऑफ लार्ज सम ऑफ मनी, रिक्वायरमेंट ऑफ लार्ज सम ऑफ मनी। जैसा कि हमने सविता और तेजपाल का जब केस स्टडी किया था तो उसमें देखा था कि जो सविता है वो डेट ट्रैप में फंस गई है ना। उसने तेजपाल सिंह से लोन लिया था, मनी लेंडर या लार्ज फार्मर जो था पालमपुर गांव का, उससे लोन लिया था, और अब वो सोच रही है कि मैं चुकाऊंगी कैसे उस लोन को, है ना। तो मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स को यूज़ करने के लिए हमें HYV सीड्स खरीदने होंगे, फर्टिलाइज़र्स खरीदने होंगे, फार्म मशीन्स खरीदनी होंगी, इंसेक्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स खरीदने होंगे। तो ये कॉस्ट इंटेंसिव है ना, ये सारी चीज़ों के लिए आपको पैसे चाहिए। तो रिक्वायरमेंट ऑफ लार्ज सम ऑफ मनी होता है मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स यूज़ करने के लिए ना। आपके पास पैसे इन्वेस्ट करने के लिए होने चाहिए पहले, तभी आप मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स यूज़ कर सकते हो। ये इसका एक नेगेटिव इफेक्ट है। जबकि ट्रेडिशनल फार्मिंग में आपको इतने पैसों की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ट्रेडिशनल फार्मिंग में आप कोई मशीन यूज़ नहीं कर रहे, तो वो नहीं लेनी है आपको। इंसेक्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स, HYV सीड्स आप कुछ यूज़ नहीं कर रहे, है ना, तो आपको उसके लिए मनी की ज़रूरत नहीं है, ओके। देन अनएम्प्लॉयमेंट इन रूरल एरियाज़। इससे क्या हो रहा है, मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स के आने से अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है रूरल एरियाज़ में, ओके। अनएम्प्लॉयमेंट कैसे बढ़ रहा है? अनएम्प्लॉयमेंट इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि हमने जैसे देखा दला और रामकली के केस में कि वो दोनों सोच रहे थे कि अब हमें काम कैसे मिलेगा, क्योंकि जो लार्ज फार्मर्स हैं वो हार्वेस्टर ले आए हैं, ट्रैक्टर्स ले आए हैं, जिसकी वजह से अब वो हार्वेस्टिंग करेंगे जब क्रॉप की, तो वो हार्वेस्टर से करेंगे, तो उन्हें मैनुअल लेबर की ज़रूरत ही नहीं है, तो अब वो हमें हायर नहीं करेंगे। तो इससे क्या होगा कि अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा। तो इसलिए इसका एक नेगेटिव इफेक्ट ये भी है मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स का, क्योंकि हम मशीनरी ज़्यादा यूज़ करते हैं, तो मशीनरी यूज़ करने की वजह से जो लैंडलेस लेबरर्स हैं या स्मॉल फार्मर्स हैं, उनको जो काम मिल जाता था सोइंग सीज़न और हार्वेस्टिंग सीज़न में, वो अब मशीन से काम होता है, तो उनको वो काम जो मिलता था वो नहीं मिल रहा है लैंडलेस लेबरर्स को, तो इससे अनएम्प्लॉयमेंट भी बढ़ता है। देन नेगेटिव इफेक्ट तीसरा क्या है इसका, डिग्रेडेशन इन द क्वालिटी ऑफ लैंड। ज़्यादा फर्टिलाइज़र्स, केमिकल फर्टिलाइज़र्स, इंसेक्टिसाइड्स और पेस्टिसाइड्स का यूज़ करने की वजह से सॉइल पोल्यूशन होता है ना, डिग्रेडेशन होता है लैंड क्वालिटी का, क्योंकि आपके सॉइल में ज़्यादा केमिकल्स आ जाएंगे आर्टिफिशियल, तो उससे जो उसकी फर्टिलाइजेशन
सॉरी फर्टिलिटी है ना, वो सॉइल की कम हो जाएगी, राइट। अगर किसी भी चीज़ में आप आर्टिफिशियल ज़्यादा केमिकल्स डाल दोगे तो उसकी जो नेचुरल फर्टिलिटी है सॉइल की वो कम हो जाएगी ना। तो इसलिए क्या होता है, ज़्यादा फर्टिलाइज़र्स, इंसेक्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स, इनका यूज़ करने से डिग्रेडेशन हो जाता है क्वालिटी ऑफ लैंड का। जैसा कि अभी पंजाब में आप देख रहे होगे न्यूज़ में बहुत प्रॉब्लम हो रही है इस चीज़ की, है ना। वहाँ पर जो क्वालिटी ऑफ लैंड है वो बहुत डिग्रेड हो गया है ज़्यादा यूज़ करने से, पेस्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स, केमिकल फर्टिलाइजर्स, राइट। देन है डिस्ट्रक्शन ऑफ एनिमल्स। डिस्ट्रक्शन ऑफ एनिमल्स क्या है? मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स हैव बिकम डेथ वारंट टू आवर पेट एनिमल्स सच एज काउस, कैमल्स, बुलक्स, बफेलोज एट्सेट्रा। जो मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स हैं वो डेथ वारंट बन गए हमारे काउज, कैमल्स, बुलक्स और बफेलोज के। बुलक्स क्या होते हैं? बैल। क्योंकि पहले जो होता था वो प्लोइंग में, है ना, खेत जोतने में बुलक्स का यूज़ होता था, बैलों से जोता जाता था खेत। लेकिन अब किससे प्लोइंग होती है? ट्रैक्टर से, राइट। तो जो हमारे पेट एनिमल्स हैं, काउज हो गए, कैमल्स हो गए, है ना, कैमल्स को ट्रांसपोर्टेशन के लिए यूज़ करते थे पहले, अब वो भी क्रॉप का जो ट्रांसपोर्टेशन होता है ट्रैक्टर से कर देते हैं, ट्रॉली से कर देते हैं, है ना। तो जो इनका यूज़ है वो ख़त्म हो गया है मशीनरी की वजह से आने से, मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स के आने से। तो अब क्या हो रहा है, इन्हें या तो रास्ते पर ऐसे ही छोड़ दिया जाता है, जैसा कि आप देखते हो, है ना, इंडिया में आपको कहीं भी किसी भी सड़क पर जाएंगे, हाईवेज़ पर भी इवन आपको स्ट्रे काउज और बफेलोज ये आपको दिख जाएंगी। तो वो क्यों है? क्योंकि पहले इनको पाल के रखते थे क्योंकि इनकी ज़रूरत थी फार्मिंग में। लेकिन अब क्या है, मशीनरी आने की वजह से, मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स आने की वजह से इनकी ज़रूरत ख़त्म हो गई है। अब इनकी जगह ट्रैक्टर्स ने, हार्वेस्टर्स ने इन्होंने ले लिया, है ना। तो इनकी ज़रूरत ख़त्म हो गई है, तो या तो इन्हें ऐसे ही खुला छोड़ दिया जाता है या फिर इन्हें मार दिया जाता है। तो ये डेथ वारंट लेके आए मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स हमारे पेट एनिमल्स के लिए। ये भी इसका एक नेगेटिव इफेक्ट है, ठीक है ना। देन एनवायरमेंट पॉल्यूशन। ओल्ड मेथड्स ऑफ फार्मिंग वर इको फ्रेंडली वाइल मॉडर्न मेथड्स ऑफ फार्मिंग कॉज पॉल्यूशन। जो ओल्ड फार्मिंग मेथड्स थे वो इको फ्रेंडली थे, है ना, जबकि मॉडर्न मेथड्स ऑफ फार्मिंग हैं वो पॉल्यूशन कॉज करते हैं। कैसे? यूज़ ऑफ डीजल एंड केमिकल्स इन फार्मिंग इज़ द मेज कॉज ऑफ डिग्रेडेशन इन द क्वालिटी ऑफ आवर लैंड। डीजल ट्रैक्टर में यूज़ होता है ना, पेट्रोल ट्रांसपोर्टेशन में यूज़ होता है, ठीक है ना, कोई भी व्हीकल होगा, तो इनसे क्या होगा? एयर पोल्यूशन होगा, ठीक है ना। पहले ओल्ड फार्मिंग मेथड्स में, ट्रेडिशनल फार्मिंग मेथड्स में, मैंने जैसा कि बताया कि एनिमल्स का यूज़ होता था, बुलक्स का, बफेलोस का, काउस का, तो वो पॉल्यूशन नहीं करते थे, एयर पोल्यूशन, है ना। जबकि अब ये मशीनरी जो है वो पॉल्यूट करती है एनवायरनमेंट को। दूसरा मैंने बताया था कि इंसेक्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स, ठीक है ना, ये ज़्यादा हम यूज़ करेंगे तो इससे क्या होगा कि डिग्रेडेशन होता है सॉइल क्वालिटी का, यानी कि सॉइल पोल्यूशन बढ़ता है। तो ये भी एनवायरमेंटल पोल्यूशन का एक कॉज है ना। तो लैंड, वाटर एंड एयर तीनों पॉल्यूट होते हैं मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स की वजह से। अच्छा, लैंड और एयर का तो हमें समझ आ गया। वाटर कैसे पॉल्यूट होगा? वाटर ऐसे पॉल्यूट होता है कि जब हम ज़्यादा केमिकल फर्टिलाइजर्स डाल देते हैं सॉइल में, तो क्या होता है, वो ग्राउंड वाटर में कई बार मिक्स हो जाते हैं, जिसकी वजह से वो ग्राउंड वाटर जो है वो ड्रिंकेबल नहीं रहता, है ना, यूजेबल नहीं रहता, पॉल्यूटेड हो जाता है। तो इसलिए ये जो मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स हैं, ये केमिकल्स जो हैं वो वाटर को भी पोल्यूट करते हैं। ओके, तो ये लैंड, वाटर एंड एयर तीनों को पोल्यूट करते हैं। देन नाउ मैनी एग्रीकल्चर साइंटिस्ट्स आर एडवोकेटिंग अगेंस्ट द यूज ऑफ मेडिकल मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स। नाउ many agriculture scientists are advocating against the use of modern farming methods. Why they are advocating against the modern farming methods? Because they are harmful for our environment, harmful for our earth ecosystem.
they are advising to use organic manure in place of chemical fertilizers. The scientists are advising to use organic manures in place of chemical fertilizers because organic manure is not harmful for our environment. ओके, ऑर्गेनिक मैन्योर कैसे बनती है आपको सबको पता होगा. हम जो पुराने, जैसे आप खुद भी बना के देख सकते हैं, एक पिट खोदिए, गड्ढा खोदिए, उसमें आप सब्जी के छिलके, फ्रूट्स के छिलके, है ना, ये जो बाकी किचन का वेस्ट होता है वो डाल दीजिए, है ना, और फिर उसे ढक दीजिए गड्ढे को. तो आप कुछ दिन बाद देखेंगे तो वो मैन्योर बन जाएगा, है ना, अपने आप कंपोस्ट बन जाएगा. ओके, तो ऑर्गेनिक मैन्योर्स का यूज़ करने के लिए बोल रहे हैं साइंटिस्ट, क्योंकि ऑर्गेनिक मैन्योर इज़ नॉट हार्मफुल फॉर आवर एनवायरनमेंट वाइल chemical pesticides, insecticides and fertilizers are harmful for our environment. Okay, then the land distribution among Indian farmers. Now a big problem in India is the land distribution, because the land distribution in India is very uneven. Okay, why is it uneven? As you can see that about 55.4% of cultivated area of land is in control of about 15% farmers only. यानी कि 55.4% कल्टिवेटेड एरिया ऑफ लैंड है ना, आधे से भी ज़्यादा जो इंडिया का कल्टिवेटेड लैंड एरिया है वो किसके कंट्रोल में है? ओनली 15% फार्मर्स के. देख रहे हो आप, जबकि बाकी बचे 85% फार्मर्स के पास 44.6% ही कल्टिवेटेड एरिया ऑफ लैंड है. यानी कि 15% फार्मर्स के कंट्रोल करते हैं आधे से भी ज़्यादा लैंड, कल्टिवेटेड एरिया 55.4%, और बाकी बचे 85% जो फार्मर्स हैं वो 44.6% ही कंट्रोल करते हैं. यानी कि जो लैंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एरिया है ना, जो लैंड डिस्ट्रीब्यूशन है इंडिया में, फार्मिंग लैंड, कल्टिवेटेड लैंड, वो बहुत ज़्यादा अनइवन है ना, जिसकी वजह से जो स्मॉल फार्मर्स होते हैं या मार्जिनल फार्मर्स होते हैं वो डेट ट्रैप में फंस जाते हैं, क्योंकि उनके पास इतना लैंड ही नहीं है कि वो कुछ प्रॉफिट कमा पाएँ. तो जब उन्हें अगली फसल लगानी होती है तो उन्हें दोबारा मनी लेंडर्स और लार्ज फार्मर्स से पैसे लेने पड़ते हैं, जिसकी वजह से वो डेट ट्रैप में फंस जाते हैं, कर्ज चक्र में फंस जाते हैं. ओके, नाउ स्मॉल फार्मर्स कौन से होते हैं? स्मॉल फार्मर्स होते हैं जिनके पास 2 हेक्टेयर्स लैंड एरिया से कम लैंड हो, है ना. एक तो लैंडलेस लेबरर्स हो गए जिनके पास लैंड ही नहीं है. स्मॉल फार्मर्स कौन से होंगे? जिनके पास 2 हेक्टेयर्स ऑफ लैंड से कम लैंड हो. मीडियम और लार्ज फार्मर्स कौन से होंगे? जिनके पास 2 हेक्टेयर्स या उससे ज़्यादा लैंड एरिया हो फार्मिंग के लिए. ओके, ये तो हो गया आपका चैप्टर. देन आपको क्या करना है, आपका होम असाइनमेंट ये है कि आपको अपने आसपास, या तो आपका गांव होगा उसमें, या फिर अपने आसपास कोई गांव हो, तो आपको उसमें ऑब्ज़र्व करना है ना, और लिखना है एक पेज पर कि वहाँ पर क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं. जो हमने प्रॉब्लम्स पढ़ी क्या वो हैं वहाँ पर, और अगर हैं तो उनके सॉल्यूशंस कैसे किए जा रहे हैं, या तो विलेजर्स के द्वारा इंडिविजुअली, या फिर गवर्नमेंट की कौन कौन सी पॉलिसीज़ हैं जो उनकी मदद करने के लिए हैं फार्मर्स की. ठीक है, तो पहला तो ये हो गया असाइनमेंट आपका. ज़्यादा बड़ा नहीं लिखना है, मैक्सिमम 2 पेजेस पर. ठीक है, एक पेज पर प्रॉब्लम्स और एक पेज पर सॉल्यूशंस या पॉलिसीज़. ओके, देन आपको क्या करना है, आपको ग्रीन रिवॉल्यूशन के बारे में पता करना है कि ग्रीन रिवॉल्यूशन से कैसे फ़ायदा हुआ था, ग्रीन रिवॉल्यूशन में क्या हुआ था, थोड़ा सा मैंने आपको बता दिया है. ठीक है ना, उसके बारे में 1 पेज आपको खुद के वर्ड्स में लिखना है कि ग्रीन रिवॉल्यूशन से आप क्या समझते हैं, है ना, उससे क्या फ़ायदा हुआ था इंडिया में, और अभी उससे क्या प्रॉब्लम्स भी अराइज हो रही हैं उसकी वजह से. ओके, तीसरा आपको क्या करना है, तीसरा आपको ये लिखना है कि एक स्मॉल फार्मर है, ठीक है, उसे मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स यूज़ करने के लिए लोन की ज़रूरत है ना.
क्रॉप्स उगाने के लिए लोन की ज़रूरत है, तो वो लोन उसे मनी लेंडर्स या फिर लार्ज फार्मर से लेना चाहिए, या फिर उसे वो लोन जो है वो बैंक से लेना चाहिए, ये आपको लिखना है। और अपने जो आपने आंसर दिया है कि बैंक से लेना चाहिए या मनी लेंडर से, जो भी आपका आंसर हो उसे जस्टिफाई करना है। ओके, कि आपने ये आंसर क्यों दिया। तो समझ गए, पहला अपने आसपास के विलेजेस या आपका खुद का गांव है तो उसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं फार्मर्स को और उनके सॉल्यूशंस क्या क्या हैं। ठीक है, पहला तो ये लिखना है। दूसरा, ग्रीन रिवॉल्यूशन से आप क्या समझते हैं और उसमें क्या क्या फ़ायदे हुए और अब क्या क्या उसकी वजह से प्रॉब्लम्स आ रही हैं, ये लिखना है। एंड तीसरा, आपको बताना है कि अगर एक स्मॉल फार्मर को लोन चाहिए तो उसे वो लोन बैंक से लेना चाहिए या फिर लार्ज फार्मर्स या मनी लेंडर से लेना चाहिए, और जिससे भी वो ले तो क्यों ले, है ना। मनी लेंडर से नहीं लेना चाहिए तो क्यों नहीं लेना चाहिए, ये भी आपको लिखना है, जो कि मैं आपको बता चुका हूँ। ओके, देन अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। यू कैन रीच मी। ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग क्लासेस। थैंक यू।